Now see over here, this is our topic, that is different thermodynamic processes. तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे thermodynamic processes and their applications in the coming lectures. In the coming lectures, we will discuss applications of these different thermodynamic processes. तो let us start different thermodynamic processes. हम यहाँ पे start करते हैं. आज का हमारा लेक्चर है thermodynamics का, ये लेक्चर सेकंड है, that is different thermodynamic processes. So let us start over here, different thermodynamic processes. Now in this course of the time, in this lecture we'll discuss, now see, this is our topic. There is problem with some guys. I don't know why they have problem. बाद में मुझे अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है. I can't upload the video there. So it is better अगर आप ठीक ही रहोगे तो बाद में आप YouTube पे भी इसको देख सकते हो. So topic is different thermodynamic processes. So let us discuss today different thermodynamic processes. I will start from first thermodynamic process. इन प्रोसेस को हमने डिस्कस किया था, थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था. इन प्रोसेस को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था. Discussed them. These processes we have discussed over there. See different thermodynamic processes. इन प्रोसेस को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था गैसियस स्टेट में. Our first thermodynamic process is, our first, now see over here, number first thermodynamic process is, the very first thermodynamic process, isothermal process. Isothermal process. So what are isothermal processes? Isothermal processes are those processes which take place at constant temperature. So right here, point number 1, for isothermal processes, for isothermal processes, your del T is equal to 0, means change in temperature is equal to 0. T is not equal to 0, del T is equal to 0, means there is no change in temperature. For isothermal processes, del T is equal to 0, means change in temperature is equal to 0. These processes take place at constant temperature. तो आपने ये वाली प्रोसेस कहाँ देखी है? थिंक दिस प्रोसेस हमने देखी है कहाँ पे? बॉयल्स लॉ में. तो बॉयल्स लॉ में एक्चुअली हमने P वर्सेस V का ग्राफ बनाया था. तो यहाँ पे हमने एक हाइपरबोलिक कर्व बनाई थी, and this curve was found to be at a particular temperature, means temperature here was constant. Temperature constant means del T was equal to 0. Temperature was constant, del T was 0. Therefore इस प्रोसेस को हम आइसोथर्म भी कहते थे. इस प्रोसेस को हम आइसोथर्म भी कहते थे. तो हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखते हैं. सेकंड पॉइंट इज, जो भी आइसोथर्मल प्रोसेस होगी, ऑल आइसोथर्मल प्रोसेसेस, जो भी आइसोथर्मल प्रोसेस होगी, दैट ओबेज बॉयल्स लॉ, that obeys Boyle's law. Write this point, this is very important. Isothermal processes obey Boyle's law. For isothermal processes, del T is equal to 0, and isothermal processes obey Boyle's law. Now see one more important thing. आगे आगे हम देखेंगे वर्क डन. विल सी, आगे हम जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर होंगे उनमें हम वर्क डन डिस्क्राइब करेंगे. अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन निकालना चाहते हैं, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में यू वांट टू डिटरमाइन वर्क डन, देन वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, यहाँ पे हम नोट डाउन करके रखेंगे, एक्सप्लेन इसको वर्क डन में करेंगे. वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इट इज इक्वल टू एरिया अंडर PV कर्व. इट इज इक्वल टू एरिया अंडर PV कर्व. मीन्स हम यहाँ पे कोई PV कर्व बनाएंगे. दिस इज अ PV कर्व, दिस इज अ PV ग्राफ. इस ग्राफ को बनाएंगे
यहाँ पे हमें अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन निकालना है तो इस ग्राफ में हम फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम चेंज करेंगे। नाउ दिस इज चेंज इन वॉल्यूम, लेट दिस इज V1, दिस इज V2, तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1 हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो यहाँ पे अगर हमें इस प्रोसेस में कहीं पे वर्क डन निकालना है दैट विल बी इक्वल टू एरिया अंडर दिस करो। तो दिस थिंग विल डिस्कस लेटर जब हम वर्क डन को डिस्कस करेंगे इन डिफरेंट प्रोसेसेस। तो एक और पॉइंट आपको आइसोथर्मल प्रोसेस में याद रखना है। द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जब भी आपकी प्रोसेस आइसोथर्मल होगी, इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन आइसोथर्मल प्रोसेस internal energy is equal to zero. In isothermal process, internal energy is equal to zero. Change in internal energy is equal to zero. Means change in internal energy. Now, what is this internal energy? आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। Change in internal energy which is equal to zero. Change in internal energy को हम या तो del U या del E से डिटरमाइन करते हैं। It is equal to zero. In isothermal process, change in internal energy is equal to zero. Change in internal energy is equal to zero in isothermal process. Change in internal energy is equal to zero. So there are basically four important points regarding isothermal processes. Point number first is in isothermal processes del T is equal to zero. Point number second is isothermal process को भी Boyle's law. Point number third is अगर कहीं पे वर्क डन निकालना होगा that will be area under that curve. और point number four जो बहुत ज्यादा important है del U or del E is equal to zero. Direct this question has been asked so many times. del U change in internal energy, इसी को आपकी बुक में del E से रिप्रेजेंट करता है। You can write it as del U, so that is equal to zero. This thing is equal to zero. Now see यहाँ पे हम next process को डिस्कस करेंगे। So the second process for here is isobaric process. So the second process is isobaric process. Process number second is isobaric process. Isobaric process. This lecture will be very important because आगे हमें डिस्कस करना है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस, सबके हमें एप्लीकेशन पढ़ने हैं। दैट्स व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। तो आइसोबारिक, आइसो मींस द टर्म आइसो over here means constant and bar is a unit of pressure. Therefore in isobaric processes what is constant? The change in pressure is equal to zero. In isobaric processes, del P is equal to zero. Del P is change in pressure. P is not equal to zero. Your P pressure is not equal to zero, but change in pressure is equal to zero. There is no change in pressure in isobaric processes. Now, number third type of the processes, that's adiabatic process. Adiabatic process. Last year NEET में ये आया था, adiabatic process. तो एडियाबैटिक प्रोसेस किस प्रोसेस को कहते हैं? एडियाबैटिक उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें ना हीट एंटर होगी ना लीव होगी फ्रॉम द सिस्टम। नीदर हीट एंटर्स नॉर लीव्स फ्रॉम द सिस्टम। मींस ये हमारे पास कोई सिस्टम है, दिस इज सिस्टम। इस सिस्टम में कोई पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। नाउ लेट अस कंसीडर इट्स दीज पार्टिकल्स दे हैव बीन हीटेड फर्स्ट, ये हमने हीट किए हैं, मींस दे आर हैविंग अ सर्टेन टेंपरेचर T। Now in an adiabatic process, अगर आप यहाँ से इसको हाथ भी लगाओगे you will feel it cold, means कोई भी हीट यहाँ से एक्सचेंज नहीं होती है, नहीं from the system to the surroundings, from the system to the surroundings, नहीं from the surroundings to the system। यहाँ से अंदर हीट जाएगी ना यहाँ से बाहर जाएगी। हीट को हम क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं थर्मोडायनामिक्स में? तो in adiabatic process this Q is equal to zero, means adiabatic process में Q is equal to zero, neither heat enters nor leaves the system. Now number fourth process is isochoric process. Number fourth process isochoric process. Number fourth process isochoric process.
Now, what is isochoric process? It is that thermodynamic process in which change in volume is equal to 0, del V is equal to 0. For isochoric process, del V is equal to 0. Now, we have one more type of the process. That's not too much important, but I'll write over here. अगर कोई याद रखना चाहेगा वो उसको याद रख सकेगा. That's polytropic process. Polytropic process. Now, what is polytropic process? In the next lectures, हम डिस्कस करेंगे CPU और CV क्या होता है. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा for polytropic process, change in CP means del CP is equal to 0 and del CV is equal to 0. Now, what is this CP? It is specific heat at constant pressure. जब हम स्पेसिफिक हीट को डिस्कस करेंगे विल डिड्यूस दिस इक्वेशन. डेल सीपी की इक्वेशन क्या होती है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. Specific heat at constant pressure. And what is del CV? It is specific heat at constant volume. Del CV is specific heat at constant volume. तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, बेसिकली इट्स अ स्पेसिफिक हीट. इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, बेसिकली इट्स अ स्पेसिफिक हीट. Now, one more important type of process, that is number 6th, that is cyclic process. This one is important. Cyclic process. Cyclic process is important. Now, what is cyclic process? For example, my point, this point, from this point I am starting. यहाँ पे for example कोई volume है V1. I am starting the process. I reach to the point, this point. यहाँ पे volume है V2. Now, up from V2, I am returning to the original point V1. तो यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होती है, यहीं पे खत्म होती है. तो मेरा V2 ये नहीं बना. This is V1, this is V2, means change in volume in this process is equal to 0. तो जो भी मेरी this type of प्रोसेस होती है, साइक्लिक प्रोसेस जो भी होती है, सी इन साइक्लिक प्रोसेस, ये जो मेरा साइक्लिक प्रोसेस होता है, in cyclic process, a change in internal energy du is equal to 0. Change in, you can write del u or du. Du is equal to 0 and change in enthalpy. अभी हमने इन चीजों को डिस्कस नहीं किया है. Enthalpy is equal to 0. Du is internal energy. Du is internal energy and dh is enthalpy. It is called enthalpy. सी फॉर एग्जाम्पल ये मेरा सिस्टम था, यहाँ पे एनर्जी E1 था या यहाँ पे एनर्जी U1 था. अब इस सिस्टम से मैं वापस आ रहा हूँ इसी जगह. दिस इज माय इनिशियल पोजीशन, बट आई कम बैक एंड रीच टू दिस पोजीशन. सो दिस इज आल्सो माय फाइनल पोजीशन, मींस U2 is over here. So U1 is equal to U2. Therefore, U2 minus U1 is equal to 0. That's delta U is equal to 0. So guys, these are certain important thermodynamic processes. One is isothermal, isobaric, adiabatic, isochoric, polytropic and cyclic. उसके बाद एक दो और important process है जिनको हमें डिस्कस करना है. The processes are reversible thermodynamic process and irreversible thermodynamic process. The process reversible thermodynamic process and irreversible thermodynamic process. Now let us discuss now what is reversible thermodynamic process. The reversible thermodynamic process. The reversible thermodynamic process. इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, इस चीज को समझने के लिए we have to take certain steps. For example, हम कोई सिस्टम यहाँ पे लेंगे. Let this system contain a certain molecules of a gas. यहाँ पे कुछ molecules of a gas है. So see over here, this is the initial volume of the gas. Let it is V. यहाँ पे जो volume of the gas है, it is V. V is the volume of gas. So you know that जो gas molecules हैं, they always collide with the walls of the container. As a result, the pressure is created over here. तो उस pressure में को मैं P internal कहूँगा. P internal. What is P internal? P internal is pressure inside the gas molecule. Now what I am going to do?
मैं इसको यहाँ से एक्सटर्नल पिस्टन अप्लाई करूंगा, मींस एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ से अप्लाई करूंगा। दिस इज पिस्टन, इस पिस्टन से मैं P एक्सटर्नल मेंटेन करूंगा। Now see, if our P internal is equal to P external in this process, if P internal is equal to P external, then what happens? The process is at equilibrium. Internal pressure will be equal to the external pressure. Now see what we are going to do. मैं यहाँ से इन ये जो प्रोसेस है, ये जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है, इनको मैं थोड़ी सी एनर्जी अप्लाई करता हूँ, मतलब आई एम सप्लाइंग few quantities of heat to the system. Now what will happen when we supply heat to the system? You know that kinetic energy of gas molecules is directly proportional to temperature. Means actually when you are supplying heat, you are increasing temperature. तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उससे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, सो वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, मींस मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज होगी। अगर मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ कोलिजन जो यहाँ पे हो रहे थे वो इंक्रीज हो जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा? जो इंटरनल प्रेशर था वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इंटरनल प्रेशर है ये इंक्रीज हो गया। लेट अस से जो यहाँ पे न्यू इंटरनल प्रेशर बन गया, दैट इंटरनल प्रेशर इज ऑलरेडी जो इंटरनल प्रेशर था दैट इज पी इंटरनल, और जो ऐड हुआ लेट दैट एडिशन इज डीपी, स्मॉल चेंज इन प्रेशर। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्मॉल चेंज इन प्रेशर हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पी इंटरनल के बदले पी इंटरनल प्लस डीपी। दिस इज सम सॉर्ट ऑफ स्मॉल चेंज ऑफ प्रेशर जो इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। नाउ सी, अगर यहाँ पे इंटरनल प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये जो हमारा ये वाला ये वाली लिड जो है ये ऊपर की ओर उठेगी। जैसे कि आपने देखा होगा, आपने फॉर एग्जांपल कोई बंटन लिया होगा, कोई कंटेनर लिया होगा, उसमें पानी दिया होगा, फिर आप उसको हीट करते हैं, जो ढक्कन होता है ये ढक्कन ऊपर की ओर उठ जाता है। तो ये ढक्कन ऊपर की ओर उठ जाएगा, मीन्स ये जो पी एक्सटर्नल है, ये जो हमने मेंटेन किया था, ये कम हो जाएगा। अभी कितना कम हो जाएगा ये डिपेंड करता है कंडीशन उस पर। ना लेट अस से जितना यहाँ से इंक्रीज हो गया उतना यहाँ से कम हो गया, तो जो पी एक्सटर्नल यहाँ से न्यू बनेगा दैट विल बी पी एक्सटर्नल माइनस डी पी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं न्यू प्रेशर विल बी पी एक्सटर्नल माइनस डी पी। ओवरऑल अगर हम इस रिएक्शन को फिर एक बार देख सकते हैं, प्लस डी पी माइनस डी पी, these small changes they are almost equal changes, equilibrium is also maintained over here। तो हमने प्रोसेस इतने स्मॉल स्टेप में की। द प्रोसेस इज कैरीड आउट इन सो स्मॉल स्टेप, सो मेनी स्मॉल स्टेप्स। स्मॉल स्टेप इज रिप्रेजेंटेड बाय डीपी, यहाँ पे डीपी रिप्रेजेंट करता है स्मॉल स्टेप। अगर मैं यहाँ पे डेल पी लिखता देन दैट वुड हैव बीन लॉरेंट स्टेप, वहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम भी होता है। तो अगर हम किसी प्रोसेस को स्मॉल स्टेप में कैरी करेंगे इन वेरी स्मॉल स्टेप, so that हमारा जो इक्विलिब्रियम है that will be maintained at each and every step, and that process is called thermodynamic reversible process। तो हम यहाँ पे लिखेंगे thermodynamic reversible process is that which is carried out in very small steps so that equilibrium is maintained at each and every step। तो यहाँ पे हम लिखेंगे that process, that type of process, that thermodynamic process, that thermodynamic process which is carried out infinitesimally small amount, which is carried out in infinite means very small steps, infinitesimally means very small steps, so that equilibrium is maintained at each and every step, यही से आपका इंटीग्रेशन का कंसेप्ट भी स्टार्ट होना हो जाएगा। एट ईच एंड एवरी स्टेप means that process which is carried out in very small amounts, in very small steps, not amounts, in very small steps, so that आप इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर सकोगे at each and every step of the reaction,
then that is called a reversible thermodynamic process. हमें बेसिकली इस चीज को बहुत ज्यादा बिल्कुल यहाँ पे आपको ये याद रखना है, रिवर्सिबल थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होती है। भाई बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर्स, कमिंग लेक्चर जो होंगे उनमें हम वर्क निकालेंगे इन रिवर्सिबल थर्मोडायनामिक प्रोसेस, इन इरिवर्सिबल थर्मोडायनामिक प्रोसेस, इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, इन एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। सो बेसिकली यहाँ पे हम बेसिक्स थर्मोडायनामिक्स का इसलिए आपको अंडरस्टैंड करा रहे हैं। Now one more process is irreversible process. Irreversible process. Thermodynamic irreversible process. Now what is thermodynamic irreversible process? Basically it will be opposite of this thermodynamic irreversible process में आप इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर सकोगे। फॉर एग्जांपल ये आपको वॉल्यूम V1 है। Now what you are doing, you are increasing kinetic energy of these molecules. With increase in kinetic energy यहाँ का जो प्रेशर है P internal जो था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट दैट इज नाउ del P. Del P is large change in pressure. Now see यहाँ पे अगर large change in pressure होगा तो क्या होगा, हमने यहाँ पे क्यों क्वांटिटी ऑफ हीट अप्लाई की, यहाँ पे वॉल्यूम V1 था। Now because of application of the heat in gas molecule तो क्या होगा, this will expand. These gas molecules will expand. Now when is the gas molecules will expand, the volume will change. So volume जो यहाँ पे आएगा that will be now V2. तो यहाँ पे change in volume होगा V2 minus V1. If there is very large change in volume means the process will be overall this process will be expansion. तो यहाँ पे expansion होगा। Expansion तब होगा जब आप यहाँ से heat supply करते हो, means you are giving heat to the system. आप इस सिस्टम को हीट देते हो, कहाँ से देते हो, फ्रॉम सराउंडिंग्स। मींस हीट इज गिवन टू द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग्स। मींस सिस्टम सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करता है। तो आप खुद ही सोचो मैं इस हीट का वैल्यू पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं। इस हीट का वैल्यू मैं पॉजिटिव लूंगा बिकॉज दिस प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक। मींस हमारे पास एक कन्वेंशन बन गया, अगर हम सिस्टम को हीट देंगे देन हीट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। विल डिस्कस इट लेटर। तो यहाँ पे चेंज होगा, ये प्रोसेस एक्सपेंशन प्रोसेस होगी। तो यहाँ पे हमारा प्रेशर है, एक्सपेंशन प्रोसेस होगी। अगर एक्सपेंशन प्रोसेस होगी, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा, then that process is called thermodynamic irreversible process. It is that process where you cannot maintain equilibrium at each and every step. Where you cannot maintain equilibrium at each and every step. Means this process takes place in finite time. This process takes place in finite time. And you cannot maintain equilibrium over here. And equilibrium cannot be maintained over here. Equilibrium cannot be maintained at each and every step. Cannot be maintained at each and every step. Equilibrium cannot be maintained at each and every step over here. तो आप यहाँ पे equilibrium maintain नहीं कर सकते हो. So this is our thermodynamic irreversible process. Now next step में हम discuss करेंगे. We'll discuss some important things. Now what are these important things? We'll discuss first law of thermodynamics. Here we'll discuss first law of thermodynamics. या उससे पहले हम थोड़ा आइडिया देंगे आपको हीट का एंड वर्क का। हीट एंड वर्क का आइडिया देंगे। हीट एंड वर्क will give you idea about heat and work. Heat and work का concept. Now what is heat? Heat's a form of energy. Simply it is a form of energy. हमें उसको यहाँ कुछ नहीं करना है, ये तो आपको बचपन से पता है। Heat is a form of energy. असी मैं यहाँ पे कोई सिस्टम लूंगा, दिस इज सिस्टम। हमें इनके साइन कन्वेंशन बेसिकली देखने हैं। दिस इज सिस्टम। इस सिस्टम को मैं यहाँ से क्यूब क्वांटिटीज ऑफ हीट सप्लाई करता हूँ। इस सिस्टम में कुछ मॉलिक्यूल्स थे। आपको पता है जो भी मॉलिक्यूल सिस्टम में होते हैं या कहीं भी होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। नाउ वो एनर्जी कौन सी होगी? सी ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स ऑलवेज
ऑलवेज रोटेट करते हैं, देयरफॉर इनके पास रोटेशनल एनर्जी होगी। These molecules always vibrate, इनके पास vibrational energy होगी। These molecules, you know, gas molecules, they can move in this direction, they can move in this direction, they can move in this direction. This is called translational motion. तो इन molecules के पास translational energy होगी। प्लस इन मॉलिक्यूल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स है, जो भी मॉलिक्यूल होगा उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, दे कैन जंप टू नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल, जो हमने बोहर मॉडल में देखा था। मींस इनके पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। मींस देयर आर लॉट मोर फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर कोई बॉन्ड होगा तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कुछ एनर्जी जरूरत पड़ेगी, मींस बॉन्ड एनर्जी भी होगी, दी एनर्जी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड डेस्ट्रेशन। ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी दे आर नोन एज इंटरनल एनर्जी, इसको हम यू या ई से रिप्रेजेंट करते हैं। Now, what is internal energy? Sum of all forms of energies present in the system, that is known as internal energy. तो यहाँ से एक टर्म हमारे पास आ गई, इंटरनल एनर्जी। इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अगर हम इस क्यू क्वांटिटी ऑफ हीट को देंगे तो व्हाट विल हैपन, इन मॉलिक्यूल्स की रोटेशन ज्यादा होगी, मींस एनर्जी ऑफ रोटेशन इंक्रीज होगी। वाइब्रेशन मॉलिक्यूल्स की ज्यादा होगी, एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन। इन मॉलिक्यूल्स की मोशन अलोंग दीज एक्सिस इट विल इंक्रीज एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। मींस ओवरऑल क्या होगा, अगर इनकी इंटरनल एनर्जी यहाँ पे U1 थी, फिर हमने क्यू क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाई किया तो इनकी एनर्जी चेंज होके इंक्रीज होके U2 बन गई। Now see, we are applying Q quantities of heat, हमने Q quantity of heat system को दिया and internal energy changes from U1 to U2. Now let us say this was the initial volume V1 and the final volume is V2. Now आप मुझे एक बात बता, जब आप इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करते हो तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कैसे होती है, जब आप इस सिस्टम को Q क्वांटिटीज ऑफ हीट देते हो तो उससे क्या होता है, मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज होगा, तो उससे क्या होगा, जो इंटरनल प्रेशर होगा P इंटरनल वो इंक्रीज होगा। मींस यहाँ पे जो प्रेशर है दैट विल इंक्रीज, यहाँ पे जो प्रेशर है दैट विल इंक्रीज। जो हमने हीट एनर्जी यहाँ पे दी है इस सिस्टम को, जो हमने हीट एनर्जी दी, क्यों बेसिकली ये क्या क्या काम करता है, ये दो काम यहाँ पे करता है। एक तो ये आपकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करता है, इट इंक्रीजेस इंटरनल एनर्जी, जो हमने हीट सप्लाई की सिस्टम को, इट डज टू थिंग्स। फर्स्ट इट इंक्रीजेस इंटरनल एनर्जी, इट इंक्रीजेस इंटरनल एनर्जी दैट इज U फ्रॉम U1 to U2, from U1 to U2। एंड नंबर सेकंड, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया फ्रॉम V1 to V2। तो दो चीजें यहाँ पे हुई, वॉल्यूम इंक्रीज होना मतलब यहाँ पे एक्चुअली एक्सपेंशन हो गया। एक्सपेंशन कैसे हुआ, बिकॉज यहाँ पे वर्क हुआ। तो बेसिकली जो आप क्यू क्वांटिटी ऑफ हीट देते हो, ये आपकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, इसमें चेंज आता है, दैट इज डेल यू विच इज इक्वल टू U2 माइनस U1, और प्लस वर्क करता है, दैट वर्क थर्मोडायनामिक वर्क, दिस इज वर्क इन थर्मोडायनामिक्स, दिस वर्क इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू डेल V, इट इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू डेल V। तो यहाँ पे नाउ सी, आप यहाँ पे इंटरनल प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, उससे क्या होता है, ये जो ढक्कन है ये उठ जाता है। जितना ये ढक्कन उठ जाएगा उतना P एक्सटर्नल कम हो जाएगा। अगर P एक्सटर्नल कम हुआ तो इसका साइन हम माइनस लेंगे, तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू DV। तो यहाँ पे एक तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, दूसरा काम यहाँ पे वर्क डन होता है। नाउ कैन राइट दिस Q इज इक्वल टू डेल U प्लस इंटू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल V। तो जनरल फॉर्म आता है, जब भी हम किसी सिस्टम को क्यू क्वांटिटीज ऑफ हीट देते हैं, दैट हीट इज यूटिलाइज्ड इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस डूइंग सम प्रेशर वॉल्यूम वर्क। Now this work is called pressure volume work. This is one important generalization. तो यहाँ पे जो हमने हीट दी सिस्टम को, दिस हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम
और हमारे पास जो क्यू है, हमने क्यू सिस्टम को दी, मीन्स हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम। कहां से हमने सिस्टम को दी? हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स या हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। हीट गिवन टू द सिस्टम, इट इज टेकन टू बी पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं। अब व्हेन क्यू इज पॉजिटिव, व्हेन हीट इज गिवन टू द सिस्टम। तो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक और कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई हॉट थिंग हमारे पास है, लेट इट्स हॉट वाटर। तो यहाँ से आप इस कंटेनर को आप कूल करते हो, तो व्हाट हैपेंस, यू आर रिलीजिंग हीट फ्रॉम द सिस्टम। तो यहाँ से हीट रिलीज होती है फ्रॉम द सिस्टम, या हीट ऑफ सराउंडिंग्स को देते हो, मींस हीट released by the system or heat given to the surroundings, it is taken to be negative, इसका वैल्यू नेगेटिव होगा। तो Q is equal to heat, अगर हम सराउंडिंग्स को देंगे हीट गिवन बाय द सिस्टम कहेंगे, हीट गिवन टू द सिस्टम, सिस्टम एब्जॉर्ब करता है, हीट गिवन बाय द सिस्टम, हीट गिवन बाय द सिस्टम, हीट गिवन बाय द सिस्टम, तो किसको देता है? टू द सराउंडिंग्स, टू द सराउंडिंग्स, देन Q इज टेकन टू बी नेगेटिव। तो हमारे पास हीट के साइन कन्वेंशन आ गए। हीट हमारे पास हीट के अब दो साइन कन्वेंशन है, एक है हीट गिवन टू द सिस्टम एंड वन मोर इज हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम। एक है हीट गिवन टू द सिस्टम एंड अदर इज हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम। तो सी, हमने देखा यहाँ पे जो हीट है, इधर हम सिस्टम को हीट देंगे, हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम। अगर सिस्टम को हीट देते हैं, देन इट इज टेकन टू बी पॉजिटिव, हीट गिवन टू द सिस्टम। तो कहां से देते हैं? बाय द सराउंडिंग। सिमिलरली हीट गिवन बाय द सिस्टम, हीट गिवन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम ही हीट देता है, देन हीट इज टेकन टू बी नेगेटिव। दीज आर टू साइन कन्वेंशंस जो हमें थर्मोडायनामिक्स में बार बार यूज करने पड़ेंगे, जिनके बेस पे हमें प्रॉब्लम भी आती है। नंबर सेकंड इज वर्क। तो Q can be over here positive as well as negative. एक बार फिर बताऊंगा, our Q can be positive and this Q can be negative. If Q is negative, then the process is exothermic. If Q is negative, then the process is exothermic. And if Q is positive, then the process is endothermic. If Q is positive, then the process is exothermic. If Q is negative, then the process is exothermic. मीन्स अगर सिस्टम से एनर्जी रिलीज होती है, then the process is exothermic. If it is absorbed, then it is endothermic. तो यहाँ पे हमने हीट का जो कंसेप्ट है वो क्लियर किया। अब वर्क को क्लियर करते हैं। ना बेसिकली आपने फिजिक्स में बचपन से वर्क पढ़ा है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से आप इन्फर ये कर सकते हो कि वर्क जब भी हम डिफाइन करेंगे, इट इज ऑलवेज अ प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स। यहाँ पे वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, so work is always a product of two things. Work is product of two things, always product of two things. Similarly, अगर हम thermodynamics में वर्क की बात करेंगे, it is a product of two things. It is product of pressure and volume, P del V.